Okay, done. This is principle of objectivity. पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि what is the meaning of objectivity. Objectivity का मतलब है unbiased, means बिना कोई भेदभाव किए, unbiased. You will not be using your own personal judgment. Avoid to use your own opinion. Avoid to use your own opinion while preparing books of accounts. Means जब आप बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो आपको अपनी ओपिनियन और जजमेंट से काम नहीं लेना. Whatever is the facts and reality is only to be recorded in our books of accounts. This is facts. FACTS. Facts and reality only is to be recorded. And how we can judge it is a fact for that? So attach. This is attach. Attach the evidences with every recording. जो भी आप अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं लिख के उसका सबूत साथ में जरूर लगाइए. आपने ये बोल दिया मैंने 5 करोड़ की मशीन खरीदी है, वो 5 करोड़ की मशीन का बिल जो आपके सप्लायर ने आपको भेजा था, दैट यू हैव टू अटैच हियर. सिर्फ ये कह देना 5 करोड़ की मशीन खरीदी है, nobody is going to believe on you unless and until you are not producing the proof for it. So this is what we call principle of objectivity. बिना किसी भेदभाव के, बिना अपनी मनमर्जी किए, whatever is the real figure, whatever is the fact, whatever is the reality, that only you are supposed to write in your books of accounts. Then only we will be saying yes, our books are based upon facts and figures. Yes, our books of accounts are based on real factors. ठीक है. आपकी बार बार वही बात है, इमेजिनेशन की कोई स्पेस नहीं है. जो चीज हैपन ही नहीं हुई, हाउ यू कैन रिकॉर्ड? अगर आप कहते हैं कि दैट थिंग अकर्ड, देन गिव अस अ प्रूफ ना. ठीक है. आपने अपने किसी एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दी है, आप कहते हो इतना लोन हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को दिया होगा, तो उसका प्रूफ दिखाइए ना. लोन दिया था तो एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया होगा अपने एम्प्लॉयज से, सो दैट यू हैव टू शो द ऑडिटर, टू शो द सीए एट द एंड ऑफ द ईयर. Unless and until you are not presenting the proof in front of them, they will not be putting their signature. ठीक है. अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओके करवाने के लिए आपको सीए और ऑडिटर के सिग्नेचर चाहिए होते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, तब गवर्नमेंट उसकी ऑथेंटिसिटी को अप्रूव करती है. ठीक है. If you are not presenting that type of proof, they are not going to certify your books of accounts. So for that purpose, principle of objectivity is very much essential, right? So this was your accounting principles. Now directly today I am going to pick my next topic, that is accounting equation. We have to break your monotony. You will be feeling with this theoretical concept a little bit bored. So with the help of these accounting principles I will be picking. अभी हमारे accounting के थोड़े से टॉपिक रहते हैं theory के, but as we will be taking the pace in the syllabus, coverage of the syllabus, we will be picking that theoretical topics as well. But before that, I will be doing today accounting equation. Everybody has to pay attention over here. You need to be full concentrate. Then only you will get, because the topic is totally new for you, right? So let me tell you what is accounting equation. Another is right hand side. Accounting equation comprises your two sides. Book में जैसे मर्जी करे, but I will be telling you in another way. For that you need to prepare this format. Pay attention, full attention should be there on the board. Whatever I speak, just listen it carefully. So this is a box, this is a columns we are making. जैसे अपने इंग्लिश में आप डायरी एंट्री और आर्टिकल राइटिंग करते हो तो चारों तरफ से उस बॉक्स को क्लोज कर लेते हो ना, सेम आई एम डूइंग हियर, फोर साइडेड क्लोज. So this first column, या तो आप इसका नाम पर्टिकुलर्स रख सकते हैं या इसका नाम ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन रख सकते हैं. So whatever you feel comfortable, that name you can give to this.
आपकी बुक में शायद वो से ट्रांजैक्शन लिखता है, पर्टिकुलर्स भी लिखेंगे तो भी ठीक है। सो नेक्स्ट कॉलम आपको करवाई हुई है ये डबल एंट्री सिस्टम में इक्वेशन एसेट्स। फिर मैंने इंटेंशनली इसका डिवीजन बॉक्स में से स्टार्ट नहीं किया, नीचे से स्टार्ट किया, बिकॉज हियर आई पुट द साइन ऑफ माइनस, एसेट माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, फिर इज इक्वल टू का साइन इज इक्वल टू कैपिटल। So firstly you have to make or you have to frame this table. I am repeating, the first column will be of your, चाहो तो एक छोटा सा और कॉलम सीरियल नंबर का बना सकते हैं, वहां पे अपनी इक्वेशंस का आप क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे। For every transaction what will you feel that every time there will be either increase in asset or decrease in liability or increase in capital, मतलब तीनों एस्पेक्ट हर बार इफेक्ट होंगे, ठीक है। सो एवरी ट्रांजैक्शन इज हैविंग डबल इफेक्ट, तीनों में से दो हर ट्रांजैक्शन की अकरेंस पे क्या होंगे, इफेक्ट होंगे, बिकॉज वी ऑलवेज कोट दिस इक्वेशन that for every debit there is reverse credit, for any gain in my business there is a reverse sacrifice, so that we will be following every time. So firstly I will be explaining this concept with the help of my own imaginary examples, then we will be picking the first example from your book, right? आमतौर पे जब कभी भी आपको क्वेश्चन ये मिलेगा पेपर में या आपकी बुक में, he always starts with capital. We assume, for example, Miss Shilpa started business, ये लिखा होगा क्वेश्चन में, this transaction he will be giving, Miss Shilpa started business with 5 lakh, ठीक है, ये उसने दिया होगा। अब जैसे ही 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ, मींस दैट इज हर कैपिटल, एक तो 5 लाख की कैपिटल हुई, और क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, हमारे बिजनेस में कैश आया है, और कैश क्या होता है, एसेट, इसलिए आप एक तो कैश में लिखिए 5 लाख, अभी तक लायबिलिटी कोई हुई नहीं, निल, ठीक है। सो कैपिटल इज आल्सो व्हाट, 5 लाख। आफ्टर मैचिंग द इक्वेशन यू हैव टू ड्रॉ दिस डबल लाइन व्हिच विल सिग्निफाई दैट इट इज एन एंड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। So with the help of this equation, I came to know कि शिल्पा ने जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में क्या आया होगा बच्चों, कैश आया होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और किस फॉर्म में आया है, आपको कैपिटल की डेफिनेशन करवाई हुई है। जब कभी भी कोई प्रोप्राइटर पहली बार बिजनेस में पैसा लेके आता है, हम उसे क्या कहा करते हैं, कैपिटल। सो दिस इज हर कैपिटल। तो व्हाट यू सी, 5 lakh minus 0 is equal to 5 lakh. So with the help of first equation, with the help of first transaction, your accounting equation gets matched. आगे बिजनेस को चलाने के लिए आपको सामान खरीदेंगे, मान लो सेकंड ट्रांजैक्शन दे रखी है, परचेज्ड गुड्स रुपीज 10,000, दिस इज गिवन। अब 10,000 का आपने सामान खरीदा, जैसे ही आपने सामान खरीदा कैश गया होगा, आया क्या होगा, सामान, और बिजनेस में जो भी सामान आगे रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं उसे स्टॉक कहते हैं या परचेजेस कहते हैं, ठीक है। तो आई विल ऑलवेज बी कॉलिंग इट स्टॉक, एंड स्टॉक इज माय एसेट। कैश को कम कर दीजिए, 10,000 का सामान खरीदा है, कैश ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम। नाउ द कैश विल डिक्रीज टू 4,90,000, और 10,000 का आपने सामान खरीदा है, उसे चाहो तो गुड्स कह दो, चाहे तो स्टॉक कह दो, that is what 10,000. So whatever you buy, either you can call it goods or you can call it stock, right? अभी तक लायबिलिटी कितनी है, nil, तो धीरे धीरे एसेट की नंबरिंग बढ़ती जाएगी। अब आपके पास 2 एसेट हो गए, जिसमें एक एसेट पुराना कम हो गया और एक नया एसेट आपने और खरीदा। अगेन द टोटल ऑफ द एसेट रिमेन्स 5 लाख, ऐसे लाइन लगाइए, एंड द कैपिटल इज आल्सो सेम, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 आइटम्स ऐड करके लिखनी थी, तो दूसरी साइड पे भी 5 लाख आप लिखोगे। Then as usual you will be drawing the double line which will be signifying that this is the end of my second accounting equation, right? You have to use pencil and scale on your big register to solve this question, right? जितना दो मैंने बताया है आपको समझ आ गया है। Now for example he says purchase machinery for rupees 1 lakh, 1 लाख की मशीन खरीदी। अगेन क्या आया क्या गया, मशीन आई, कैश गया, तो 1 लाख से कैश क्या कर देंगे, कम, और उसकी जगह एक नया एसेट लिख देंगे, मशीन, स्टॉक हमारा एसेट रहेगा, राइट। तो लिखिए अगला क्या दिया उसने, फॉर एग्जांपल परचेज a machinery rupees
1 लाख की एक मशीन खरीदी है, अभी बताया मशीन के आने से कैश गया, सो कैश नाउ यू विल बी राइटिंग ऑलरेडी कैश कितना चल रहा है, ये सारी मेंटल कैलकुलेशन होगी एंड दैट शुड बी फास्ट एज वेल एज एक्यूरेट, राइट। सो 4,90,000 का कैश ऑलरेडी मेरे पास था आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड ट्रांजैक्शन। नाउ 1 लाख से कैश में रिड्यूस करूंगी, नाउ योर कैश विल बी 390, क्योंकि 1 लाख की मशीन खरीदी है। मशीन एक नया एसेट लिख दीजिए, दैट इज 1 लाख, और स्टॉक आपका एज इट इज है क्योंकि कुछ बिका ही नहीं अभी। So again the total will remain same, that will be 3 lakh plus 1 lakh 490, 490 में 10,000 स्टॉक का ऐड किया तो इट इज 5 लाख। लायबिलिटी अभी तक कुछ नहीं है, लायबिलिटी को नहीं लिखिए, यहाँ पे लाइन लगाइए टोटल के लिए। सो कैपिटल इज अगेन रिमेनिंग सेम, लायबिलिटीज आर nil, nil का मतलब जीरो लायबिलिटी है, राइट। सो हियर बाय अगेन आई राइट what 5. So this is the end of your third equation. Then again draw the double line. See the board from the bottom, right? So this is again we are drawing the double line. Got it? So now the above title I will be erasing. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? You may ask. Any doubt to anyone? You may ask. Yes, students. See. Goods purchased on credit. क्या मतलब है इसका? उधार पे सामान खरीदा। जिस बंदे से उधार पे सामान खरीदते हैं वो बंदा मेरी लायबिलिटी बन जाता है, जिसे हम क्रेडिटर कहते हैं। तो पहली बार फोर्थ ट्रांजैक्शन पे लायबिलिटी इज अराइजिंग, गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब जब क्रेडिट पे खरीदा है तो कैश विल रिमेन सेम, कैश तो नहीं गया क्योंकि आपने उधार पे खरीदा है। तो थर्ड ट्रांजैक्शन में मेरा कैश 390 था, अगेन एंड अगेन रेपिटेशन है भाई, that I am copying from the earlier transaction. So cash was 390, machinery was 1 lakh, that I am writing as it is. Stock already आपके पास 10,000 का था, 20,000 का और खरीदा, स्टॉक बढ़ गया। मैंने क्या बोला था? एवरी ट्रांजैक्शन विल इफेक्ट माय टू थिंग्स। सो एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा लायबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल इज रिमेनिंग अनचेंज्ड, राइट। सो व्हाट आई विल बी राइटिंग हियर, नाउ स्टॉक इज ऑफ 30,000। बार बार टोटल भी खुद नहीं करना, पुराना टोटल 5 लाख चल रहा था, ओवरऑल 20,000 का स्टॉक बढ़ा तो मेरे को 5 लाख में ये 20,000 ऐड कर देना है, 520। हर बार दोबारा थोड़ी ना टोटल करने बैठोगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बाकी पेपर भी तो कंप्लीट करना होगा, ठीक। सो क्रेडिटर्स, 20,000 का आपने उधार के सामान खरीदा, पहली बार आपकी लायबिलिटी बनी, दैट इज व्हाट वी कॉल क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स इन दिस केस वी हैव इन द इक्वेशन दैट इज 20,000। My equation says assets में से liabilities minus करो. So for the first time till my third illustration, point, my liabilities were nil. It is only in the fourth transaction that I am getting my liabilities and that are 20,000. So 5,20,000 में से 20,000 minus करिए. Again the capital is same, that is 5 lakh. So once again your accounting equation is matching. लो जी, हो गई मैच फिर से। 5,20,000 में से 20,000 माइनस कर दीजिए, यू विल बी हैविंग योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। गॉट इट? नेक्स्ट, रेंट पेड, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? रेंट बीइंग एन एक्सपेंडिचर, बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, फॉर एग्जांपल वी आर पेइंग रेंट 5,000, ठीक है। तो रेंट मेरा एक एक्सपेंडिचर है और क्योंकि मैंने पे कर दिया, कैश जा रहा है। अब ध्यान से इसका इफेक्ट देखना, रेंट मेरा एक्सपेंडिचर है, कोई भी एक्सपेंडिचर हो तो माय कैपिटल कम्स डाउन, कोई भी इनकम हो तो माय कैपिटल कम्स अप। तो कोई भी खर्चा अगर होगा तो आपने कैपिटल में से उसे माइनस करना है, प्लस उसको कैश में से माइनस करना है। तो दो जगह इफेक्ट क्या हुआ? रिड्यूस योर कैश, रिड्यूस योर कैपिटल। मीशो पैसा आपने लगाया था उसमें ही कमी आई ना, जब आपने खर्चा पे किया, कैश किया, तो कैश की फॉर्म में तो कैपिटल आई थी, ठीक है। सो वी हैव टू चेंज इट नाउ। नाउ योर कैश विल बी 385, 390 में से 5,000 माइनस 50 कर लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेशन। 390 में से 50 माइनस किया, 340। मशीन अगेन आई एम कॉपी सेम, दैट इज ऑफ 1 लाख। डिजिट के नीचे डिजिट लिखना, यहीं पे कैलकुलेशन होनी चाहिए और ठीक होनी चाहिए। दिस इज व्हाट स्टॉक 30। तो यहाँ तक टोटल कितना बना? मैं सीधा 520 में से 50,000 माइनस करूंगी, मेरे को पता 470 बनना है।
ठीक है, बार बार टोटल नहीं करना पुराने वाला, इसलिए मैं कहती हूँ ना अगर पुरानी एंट्री गलत करी है तो आगे वाले के सारे गलत हो जाते। सो यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्शियस टू डू दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अदरवाइज वेरी इजी, थोड़ा सा फंडा क्लियर होना चाहिए, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। क्रेडिटर्स आर सेम, आई एम रिपीटिंग द सेम अमाउंट, so hereby I will be writing 20,000. What about my capital? So rent paid is my expenditure. Every expenditure, this is a rule, every expenditure will decrease my capital, and it is also the rule every income will increase the capital, because income we get in cash, even if it is still receivable, even if it is still payable, like for expenditure, then also it will be reducing your capital. By following the revenue recognition concept, the income about which you are quite certain to be received, that is to be treated as income. So income मिली गई है तो भी उसे कैपिटल में ऐड करना, मिलने वाली है तो भी उसे कैपिटल में ही ऐड करना. So here do I write capital? See the way I am writing, that is 5 lakh minus word डाल के, माइनस का साइन डाल के you will be writing rent paid. बता के आना एग्जामिनर को मैं क्या माइनस कर रही हूँ, that is 50,000. So when I deduct 50,000 from 5 lakh, I get my capital 4,50,000. You can easily see again your left hand side, that is 470 minus 20 is equal to 4,50,000. Again my accounting equation is matching, right? Commission of rupees 10,000 still to be received. और जो इनकम अभी मिलने वाली होती है उसे बोलते हैं accrued income. So I will be writing the next point, commission accrued. Commission accrued rupees 10,000. आपको एक कमीशन मिलने वाली है, अभी मिली नहीं. Commission accrued, यही वर्ड लिखेगा वो भी बुक में. Commission accrued rupees 10,000. अभी मिली नहीं इनकम, कैश में कोई फर्क नहीं होगा. कोई भी इनकम जो आपको मिलने वाली होती है वो आपकी करंट एसेट होती है. एक तो इसे एसेट बनाइए, क्योंकि ये इनकम मिलने वाली है तो ये आपकी कैपिटल में भी क्या होगी, ऐड होगी. कैश नहीं बढ़ेगा क्योंकि कैश में अभी नहीं मिली. So cash I will be writing same, that is 340. Machinery I will be writing same, that is 1 lakh. Stock I will be writing same, that is 30,000. And one new asset I got which I call accrued income or accrued commission, that is 10,000. मैं फिर से टोटल दोबारा नहीं करूंगी, मैं पुराने वाला टोटल उठाऊंगी. पुराना टोटल मेरा 470 था, 470 में 10,000 ही तो और बढ़ा. See the board from the lower side. So 470 में 10,000 add करिए, your total will come to you 480, right? What about your creditors, remaining same? Just copying. Draw the line for adding. So this is 20,000. What about the capital? Earlier my capital was, मैंने अभी क्या सिखाया है, कोई भी इनकम मिल गई है वो भी कैपिटल में ऐड करनी है, कोई इनकम मिलने वाली है वो भी कैपिटल में ऐड करें. आई एम टेकिंग योर क्वेरीज हिमांशु आफ्टरवर्ड्स. वेट, hereby I am stopping. Add accrued commission, so that was 10,000. So what you find, again your accounting equation gets satisfied. How come? 480 minus 20,000 is equal to 4,60,000. So again our accounting equation gets satisfied, whereby left hand side is equal to right hand side. So now I am going to come to your queries. Yes, where is Himanshu? You raised hand. Do you want to ask something? Yes. So now he kept his hand down.